सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। तो जनाब उस पस मंज़र में एक कल हमने यहाँ एक एडजर्नमेंट मोशन दी हुई है, तो हमारी गुजारिश है कि वो उस पर गौर किया जाए और हमें क्वेश्चन नंबर के बाद बात करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, AQ 1436, मिनिस्टर इन चार्ज कोऑपरेटिव्स। Sir, AQ number 1436. Part A, sir. The details of district-wise total extent of land owned by the various cooperative societies that has been illegally encroached in the UT of Jammu and Kashmir includes Araspora, Jammu South, Constituency are as under. One, sir, Baramulla, 1 canal at Dobiwan. Bandipora, sir, 8 canals, 10 malras at Argam, Bandipora. 3 canal land at Tundpora, Hajan. Srinagar, 6 malra land at Palpura, Srinagar. Kutwa, sir, 2 canal land, Narin MPCS. 5 canal, 3 malras. Kiranagar, 0.5 malras, Shah Bani, MPCS. 5 Kishtwad, 0 malras, Dool, Galhar, MPCS. 5 malras, Atholi, MPCS. Jammu, sir, 15 malras, Pindi, Pagwari, MPCS. Block 4. CMC, Araspora, 13 canals. Chak, Modiar, MPCS, 1 canal. Biaspora, MPCS, 1 canal. The Part B, sir, the encroachment occurred mainly due to the lack of proper demarcation of land by the authorities, use of forces and manipulation of records by the encroached, occupied by the armed forces, lack of demarcation and poor record maintenance and misuse of long-term rent agreement. Part C, sir, in most of the encroachment land cases, the matter is sub judice in various district municipal courts of the UT of Jammu and Kashmir, and also the department has lodged FIR against the encroachers at various locations. With regard to encroachment of land at following locations in Araspora, Jammu, belong to cooperative society, the case status is as under. CM Araspora, 13 canals. The matter is sub judice in the Honorable High Court, Jammu and Kashmir. Case titled Inderjeet Singh versus Union Territory of Jammu and Kashmir. The case was filed on 16/12/2024 by the petitioner Inderjeet Singh against the department for the action taken, and the Honorable High Court has adjourned the case on multiple occasions without any hearing. Chak Modiar, MPCS, 1 canal. The matter is sub judice in the court of Deputy Commissioner with powers of Collector Jammu. The department has received the summons in the investigate on 28/2025, and the matter has been taken up with the Tehsildar as for spot verification and latest status of revenue records. Biaspora, MPCS, 1 canal, sir. The matter is sub judice in the court of Additional Special Mobile Magistrate, Araspora. The case was filed on 15/1/2024 by the petitioner Satpal against the Secretary Biaspur MPCS Limited Sri Rugveer Singh. The department is not yet a party to the case. The Secretary has been instructed to plead before the court through his lawyer to make the department party to the case, sir. मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट थी कि जो आरसपुरा मेरी विधानसभा है सर, उसमें लिख रहे हैं कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी आरसपुरा 13 कनाल ऑफ लैंड, और इसमें जो कोर्ट केस हो रहा है वो कोर्ट केस हो रहा है 6/12/2024 को। हमारी ये असेंबली बनने के बाद हो रहा है, और अक्टूबर में हम बने थे, तब भी मैंने एक क्वेश्चन असेंबली में लिया था। उस पार्टी को इनके डिपार्टमेंट के तरफ से रिलैक्स किया गया कि आप कोर्ट में जाओ, आपके खिलाफ वहां असेंबली में लगा हुआ है। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और जो 13 कनाल लैंड है सर, वो मार्केट में है, और उस प्राइम लैंड है, बगसाव का एरिया पड़ता है, उसकी वैल्यू मैं थोजन बोलो 100 कनाल में 100 करोड़ में है, और साथ में वहां बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, 10-15 शॉप्स बनी हुई हैं, और एक इंडस्ट्री वहां लगी हुई है। तो क्या कर रहे हैं हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट? मैंने रिक्वेस्ट की थी, मिनिस्टर साहब को पर्सनली मिला था, मैं हाउस में बोल रहा हूं कि भाई अपने जो आपके कानून है या एक्ट है या रेगुलेशंस हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाओ कि भाई जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको राइट्स दिए जाएं कि कोई भी
व्यक्ति या जो पार्टी है हाई कोर्ट जाने से पहले वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के आगे केस फाइल करे, उसके लिए बाइंडिंग करो, जैसे कि एम्प्लॉइज कैट में जाता है उसके लिए बाइंडिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पहले का एक दिन स्टेटमेंट दी थी, बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने भी वेलकम किया था कि वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट से बड़े बड़े हाउसेस हैं, इन्होंने कहा हम गरीबों को नहीं टच करेंगे, हाउसेस हैं उनको हम इंक्रोचमेंट से खाली करवाएंगे। अगर इसको आप खाली करवाओगे सर, मैं कहता हूं कि आरसपुरा के किसानों के लिए एक मंडी बन सकती है। आप चंडीगढ़ का मॉडल देख लें, वहां हर सेक्टर में मंडी लगती है किसानों की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो एक्ट में मॉडिफिकेशन रूट्स में लाएं, और दूसरा जितनी भी लैंड है सरकारी, इसे कोर्ट्स में स्पीड अप करें अपने केसेस को, और इस इंक्रोचमेंट को हम नौकरियां नहीं दे सकते। 13 कनाल में आप 500 लोगों को जॉब दे सकते हैं, वहां शॉप्स देके किसानों को दुकानें दे सकते हैं, वहां रोजगार दे सकते हैं लोगों को। मेरा इतने निवेदन था आपसे। अगर इन्होंने अमेंडमेंट नहीं लाई, आपने क्यों नहीं लाया अपना बिल यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए? मैंने सर इनको उस टाइम को मैंने नहीं लाया बिल, पर मैंने इनको रखा था, इन्होंने नहीं लाया तो आप ला सकते थे, क्या दिक्कत? सुजेशन दिए, मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए, इसे एक्सेप्ट करेंगे। मैं इनके पास पर्सनली गया था, मैंने इनको सुजेशन दी थी, इन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट लाई थी कुछ अपने एक्ट में, वो भी वेलकम थी। उस समय मैंने सामने बैठे पूछ सकते हैं आप, मैंने उनको ये सारी सुजेशनें दी थी कि आप ऐसे अमेंडमेंट लाओ ताकि जो हमारी लैंड खाली हो, हम किसानों को फायदा दे सकें। ऑनरेबल स्पीकर सर, इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ चीजें जो होनी चाहिए थी हुई नहीं है। अब उसमें किसका कसूर है उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, पर मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान ये सारी चीजों को हम बेहतर कर रहे हैं सर। इसीलिए मैंने कल जो मैंने बात यहाँ की, जब ऑनरेबल कैसर जमशेद लोन साहब ने जो प्राइवेट मेंबर्स बिल जब यहाँ लाई थी, उसमें उन्होंने टर्म का कहा था 3 से 5 साल का। जैसे मैंने सर आपसे कहा कल कि हमारे पास 2 एक्ट इस वक्त यहाँ पर है, एक 89 का और 99 का, काफी ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ही एक्ट को मजबूत से बनाएं, और जिसमें कमियां कोताहियां जहां कहीं है, लीनियंसी रही है, उस एक्ट के जरिए वो सारी चीजें हम बेहतर करें। मैं बताऊं सर, टोटल जो हमारी यहाँ लैंड है पूरी जम्मू कश्मीर में है, वो करीबन सर 728 कनाल, और जो लैंड जो ऑक्यूपाई हुई है वो टोटल 36 कनाल। 728 कनाल में टोटल 36 कनाल जो है पूरी यूटी में जो हम एनकरेजर्स ने ली है। एनकरेज से मेरा मुराद यह है जो एमपीएस है, सीएमएस है, मल्टीपल क्रेडिट सोसाइटीज है, सोसाइटियों के पास है। अब इसमें यह है कि सालों साल से, क्योंकि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वो सालों साल से चली आई, वे बैक इन 70s 60s से कोऑपरेटिव सोसाइटी चली है। अब चूंकि यहाँ कुछ हालात ऐसे रहे, शायद इसकी तरफ जरा फोकस नहीं रहा, कोऑपरेटिव को नजरअंदाज किया गया, और विद रिजल्ट के रेंट डीड्स उस पर किसी ने अमल नहीं की, प्राइम लैंड्स हमारी थी उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जहां जहां पर भी एनकरेजर्स ने, इन्होंने क्या किया सर, कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में जो मेन प्राइम लैंड्स हमारी है सब कोर्ट में, या तो मुंसिफ में है, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या तो हाई कोर्ट में है, या कहीं कहीं कलेक्टर्स के पास है। अब हम इसको परस्यू अच्छी तरह से कर रहे हैं, आप यकीन रहे कि हम सारी चीजें जो है बेहतर करेंगे। एक बात है मिनिस्टर साहब, ये जो 99 का एक्ट है, इसको पूरे मुल्क में सराहा गया था जिस वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर में ये ला बना। पूरे मुल्क में जो कॉपरेटिव्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेशन किया था हमारी गवर्नमेंट को उस वक्त कि आपने एक प्रोग्रेसिव लॉ लाया। लिहाजा इस वक्त इस कानून को रिव्यू करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो रिफॉर्म उसमें हमने किए थे वो रिफॉर्म्स आगे भी बढ़े, वो आप जहन में रखें जब जिस वक्त आप रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन था सर, एक सेकंड सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट थी, एक इसको टाइम बाउंड करना चाहिए, और नंबर 2 के मैं हानेल मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये आरसपुरा की सोसाइटी कोर्ट में बाद में जा रही है, और इसमें आपका जो रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, वो वहां जाके इलेक्शन करा रहे हैं जब सब जुडिशियल मामला है। और नंबर 2 वो गलत है, उससे पूछना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन निकलनी चाहिए। और नंबर 2 आप कोऑपरेटिव के लिए यूज करें, ठीक है, वो कमर्शियल बन गए हुए हैं सारे कम्प्लेक्सेस, इसको ध्यान में रखो, टाइम बोर्ड करना चाहिए सर। चलिए अच्छी बात, सजेशन है, ठीक है सर, पर चूंकि ये कोर्ट में है सर, कोर्ट में हम कोई टाइम नहीं दे सकते हैं, पर इतना जरूर है कि हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे और संजीदगी से हम कार्रवाई करेंगे। वजीर अहमद खान साहब नहीं है, मिस्टर जावेद हसन बेग साहब वो भी नहीं है,
मिस्टर खुर्शीद अहमद शेख साहब। सर, AQ नंबर 1010। आप ठीक हो गए? अब मैंने सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। यार ओके ना? अच्छा, मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। कल की तैयारी की जी सर। सर, AQ नंबर 1010. It is not a fact that subjects as general studies, artificial intelligence, computer science, coding and vocational skill-based courses have not been included in the school curriculum in the schools. Components relating to general studies, computer education, digital literacy and vocational skill-based education have been introduced in different levels of schooling in a phased manner, depending upon the levels of institution, availability of infrastructure, trained manpower and requisite facilities. Computer science, information practices and ITI as separate subjects have already been introduced in the curriculum at higher secondary levels up to 7. Besides vocational skill-based educational, within 15 different trades have been implemented in high and higher secondary. In alignment with the recommendations of the National Education Policy 2022, the introduction of artificial intelligence as a subject discipline is under active consideration in the department in alignment with NEP 2022. The integration of 21st century skills as articulated in the National Curriculum Framework for School Education 2023 and NEP 2022 is already being implemented in a phased manner. The revised curriculum framework emphasizes critical thinking, creativity, communication, collaboration, digital literacy, problem solving, and experimental learning. These competencies are being systematically embedded across subjects through curriculum rationalization, revised approaches, competency-based assessments, and integration of skill-oriented modules at the secondary and senior secondary levels. Yes, the existing curriculum is aligned with the National Education Policy 2020, particularly in respect of digital literacy, multidisciplinary learning and vocational education. The National Education Policy 2022 advocates an integrated and holistic approach to curriculum design. Accordingly, domains such as digital literacy and skill education are embedded within the curriculum from the foundational stage onwards. These are not treated as stand-alone subjects at the elementary levels. Rather, they are through interdisciplinary and thematic learning areas to ensure meaningful learning. Teachers are being oriented and trained to efficiently integrate these competencies into classrooms practices through by ensuring the acquisition of relevant skills and learning outcomes in a holistic manner. However, at the secondary and senior secondary levels, digital literacy and skill education are also being offered at present as dedicated elective subject within the curriculum in addition to their cross-curriculum integration. जी सर, हमने जो सवाल पूछा है कि नए सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग वगैरह जो है, क्या सरकार का कोई प्लान है कि इन सब्जेक्ट्स को जो है सरकारी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाए? तो इसमें जो जवाब आया है कि 11th-12th में जो है कुछ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि क्या
प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल जो है, क्या उनमें कोई प्रपोजल हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इस वक्त जो डिजिटाइजेशन का जो ज़माना है, या इस वक्त जो है स्किल या जो वोकेशनल कोर्सेज की जो नीड है इस वक्त, तो हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में जो है इसकी तरफ जो है काफ़ी जो है ध्यान दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जो एडमिशन जो लोग करते हैं अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में, इसकी जो बुनियादी वजह वो यही है कि हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स है वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाया जाता है। खुसूसन जो जनरल स्टडीज़ जो है, जनरल स्टडीज़ या कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, तो क्या कोई प्रोग्राम है सरकार का कि 10th तक जो है इन सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ाया जाए? सर, अभी जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा उसका हमने जवाब दिया है। जैसे 6 क्लास से लेके 7 तक जो है ऑलरेडी ये सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आप ये पूछ रहे हैं प्राइमरी से जो फर्स्ट से अप टू प्राइमरी। सर, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तभी आप ये सब्जेक्ट्स या वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल हो तभी आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे आप खाली इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर टीचर नहीं होगा, आपका पढ़ाने वाला नहीं होगा, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, अभी मैं ये यकीन के साथ कहती हूँ कि इन 1.5 बरस में जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, जितना हमने कोशिश की है कि हम बेहतर से बेहतर सरकारी स्कूलों में भी हर चीज़ अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसमें से NEP के ज़रिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। वो ऑलरेडी हर लेवल पे जो है स्कूलों में, हायर लेवल है, मिडिल लेवल हो या सेकेंडरी लेवल हो, वहाँ पे हमने ये इंट्रोड्यूस की हुई है। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ ऑनरेबल मेंबर को, हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन जो ही हमें लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, टीचर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो, जब हम कर पाए ये सब चीज़ें, तो जो इनका कहना है कि बाकी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए, तारिक हमीद का साहब। सर, AQ नंबर 1148। मिनिस्टर इन चार्ज सोशल वेलफेयर। Sir, AQ number 1148. The district Srinagar 1190 Anganwadi centers are functional. Out of these, 152 Anganwadi centers are functional in central Shaltingu constituency, catering to the needs of the target beneficiaries of the said constituency. Sir, at present there is no such proposal under consideration of the government. However, opening establishment of new Anganwadi centers in central Shalting constituency that fulfill the criteria will be examined for submission to the Government of India. Sir, no new Anganwadi center has been established or sanctioned during the financial year 2025-2026 in the UT of Jammu and Kashmir, including Assembly constituency of Central Shalting. The monthly honorarium of Anganwadi workers and helpers is with honorarium provided to Anganwadi workers and helpers at the national level on pattern of 90:10. The government of Jammu and Kashmir is already giving additional state share to Anganwadi workers and Anganwadi helpers. The matter would be taken up with Government of India to examine for enhancement of honorarium subject to availability of resource. हाँ, कोई सवाल? करा साहब, आप पूछना चाहते कुछ? मैं आधा ही जवाब पढ़ा, तो इसीलिए करा साहब, हाँ सॉरी, मैं भूल गई इसको, मैं पढ़ती हूँ, सॉरी। Sir, total number of beneficiaries covered under different schemes of social welfare department in the said constituency are 6,756.
The old age pension under ISSS and National Social Assistance Program has been recently enhanced along the other components by Government Order Number 96 JK Social Welfare Department of 2025 dated 3/4/2025 for the eligible beneficiaries. The present monthly pension provided to the eligible beneficiaries are as under: beneficiary aged below 60 years 1250, beneficiary aged to 79 years rupees 1500 per month, beneficiary aged 80 years and above is rupees 2000 per month. Sir, I am convinced with the reply of the government. अलबत्ता अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कुछ गुजारिशात हैं. क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं. क्वेश्चन में ही है ये सारे, क्वेश्चन से रिलेटेड ही है. सर, ऑल ऑफ अस नो कि जम्मू कश्मीर इज ए वेलफेयर स्टेट और पिछले कई सालों से ये सेक्टर इग्नोर भी हुआ, इसके ऊपर ज्यादा जोर भी नहीं दिया गया. अलबत्ता जो सरकार कह रही है कि हम 90-10 के रेशो से इसमें अपना शेयर, स्टेट शेयर दे रहे हैं. वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार को सोचना चाहिए कि इस इन्फ्लेशन के जमाने में जहां इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रोज बरोज पिसते जा रहे हैं, एक तो इनका ये स्टेट शेयर जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए. मुझे नहीं लगता अब हमें फंड्स की कोई कमी भी है. हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया कि 5000 करोड़ के वास्ते शुक्रिया भी किया. तो ऐसे वेलफेयर स्टेट में इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के वास्ते वी कैन इजीली इंक्रीज अवर दिस शेयर, स्टेट शेयर. ये तो नेशनल पैटर्न है. नेशनल पैटर्न पे हमने हर जगह नेशनल लेवल पे स्टेट शेयर इतना ही है. मैं तो कह रहा हूं कि हमें वी शुड टेक दिस इनिशिएटिव, वो सरकार सोचे इसके ऊपर. तो देखिए, दूसरा चीज मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेलफेयर मेजर्स पे होती हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी परसेंटेज, जिसके ऊपर वो एलोकेशन करते हैं, और जो हमारे स्टेट में जो उसकी परसेंटेज हम दिखाते हैं उसमें वेरिएशन होती है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें है, पॉवर्टी एलिविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जिसके तहत वो यहां अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उन्होंने एंटाइटलमेंट रखी थी सिर्फ 2% की एलोकेशन की. उस पे जिस वक्त हमने काम किया, देखा ये वेरिएशन थी. हमारे इसमें 12% दिखाते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% दिखाती थी. तो ऐसे ही कल भी ये वेरिएशन की बात आई. तो मेरा गुजारिश होगी सरकार से, किसी भी इस महकमे के लिए जहां पे ये परसेंटेज के ऊपर वो होता है, तो उसको अपडेटिंग की जरूरत है, नंबर 1. नंबर 2, हमें ऑलरेडी यहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट है. तो मेरे ख्याल में अगर सरकार इस चीज पे गौर करे कि ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को उस जुमरे में लाया जाए जहां पे एक मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको मिनिमम वेजेस मिल सकें. अदरवाइज इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन टू दैट. जो हम दे रहे हैं वो उसके कॉन्ट्रवेंशन में है. तो यही गुजारिशात मेरी सरकार है. सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ पे बात की है ऑनरेरियम बढ़ाने की, क्योंकि मैंने अपने सवाल जवाब में पहले ही कहा ये स्कीम जो है 90:10 पैटर्न पे चल रही है. लेकिन मैं ऑनरेबल हाउस को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब 2008 में जब सरकार बनी थी, जिस टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस सरकार की क़ियादत कर रहे थे, उसी टाइम पे जो ऑनरेरियम है ICDS सेक्टर में बढ़ाया गया है. ना उससे पहले बढ़ा ना उसके बाद बढ़ा. लेकिन ऑनरेबल मेंबर का बहुत जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा लेते हैं हम. हमारी जो बहनें हैं ICDS सेक्टर में, चाहे वो हेल्पर काम करती हैं, चाहे वो एज वर्कर काम करती है, और कुछ नए चेंजेस इन बरसों में
इनके जो रूल्स हैं, रूल्स में कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पहले ICDS सेक्टर में आंगनवाड़ी वर्कर जो बहन थी वो लगती थी मैट्रिक, तो उसको अब बढ़ा के क्वालिफिकेशन 10+2 कर दिया। इसी तरह जो हेल्पर थी वो लगती थी अंडर मैट्रिक, अब उसको मैट्रिक कर दिया। लेकिन ये बढ़ाना जो है, हमने स्टेट शेयर जो है वो कई बार हमने बढ़ाया है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स का हम देखते हैं उन्होंने इतना नहीं बढ़ाया है जितना जम्मू कश्मीर ने बढ़ाया है। लेकिन इनका कंसर्न सही है, हम भी चाहते हैं कि आजकल की महंगाई में इतना ज़्यादा मुश्किल है काम करना। लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं इनको यही कहूँगी जब भत्ता कम होगा तो बिस्मिल्लाह बेचारा क्या करेगा। इतना पैसा नहीं है जितना इनको लगता है कि बहुत सारा है, लेकिन जो विरासत में एक सेकेंड करा साहब, एक सेकेंड, जो विरासत में मिला है वहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो तोड़ फोड़ में मिली है। अगर कितना भी आप पैसे लाएंगे, कितना भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मदद की है, लेकिन मैं समझती हूँ जो तबाही और बर्बादी है उससे ये पैसा अगर देखा जाए फिर काफ़ी हद तक कम है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैंने जैसे आपको अपने सवाल में बताया है, हमारा भी कंसर्न है, हम सब का कंसर्न है। हमने ऑलरेडी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, फिर भी इसका फॉलो अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका ऑनरेरियम जो है किसी हद से अगर बढ़ जाए तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा। स्पीकर सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमारे करा साहब ने लाया और मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 5,000 2008 में मैडम कहते हैं कि हमने ही इसका ऑनरेरियम बढ़ाया और आज की डेट में वर्कर को हम 5,000 देते हैं, जिसमें 600 रुपया स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी यूटी गवर्नमेंट देती है, और हेल्पर को हम सिर्फ महज 2200 रुपये देते हैं और 300 रुपया हम हमारी यूटी गवर्नमेंट देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जो सेक्टर में सैलरी बढ़ती है और 2008 से इनका कुछ नहीं बढ़ा, तो अंदाजा लगा सकते हैं इनके काम का। फिर इनकी ड्यूटी है, पल्स पोलियो हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, सेंसस ड्यूटी हो, आधार कार्ड बनाने की ड्यूटी हो, गवर्नमेंट जो बड़े प्रोग्राम है उनको कामयाब करने की ड्यूटी, सारी ड्यूटीज इनकी लगती है। तो मेरा और साथ में इनकी DPC का बहुत इशू है, बड़ा पेंडिंग रहता है DPC का। मेरा ये मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर मैक्सिमम जो हमारे हैं रेंटेड बिल्डिंग में, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं, जैसे हमारी प्री नर्सरी क्लासेस हैं, अब 12th का स्कूल है हमारा, वो छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा वहां आता है, तो क्यों नहीं हम इन आंगनबाड़ी सेंटर को स्ट्रेंथन करें और जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं सारे इसमें इसको स्ट्रेंथन करके बाहर डालें, वो भी स्कूल सफर नहीं करेगा। यहाँ तो आपके पास 10, 12, 13, 15 बच्चे हर सेंटर के अंदर, मैक्सिमम 20 होंगे। तो अगर इनको स्ट्रेंथन करें, इनका थोड़ा सैलरी बढ़ाएं, इनका DPC करें, इनकरेज करें, और प्री प्राइमरी वाले बच्चों को, और ये नियरेस्ट अपने घर के नजदीक स्कूल हैं तो इनको वहाँ न्यूट्रिशन वहाँ मिलता है, तो अगर वहाँ पे प्री प्राइमरी को वहाँ पे बच्चों को एडमिट करें और ऐसी पॉलिसी लाएं जहाँ पे बच्चों को घर के बाहर तालीम मिल सके। और वो बड़े स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी वो वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है और इनको इनका केयर हो नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई विचार करे तो आने वाले समय में हम जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। एक जो ऑनरेबल मेंबर ने प्रमोशंस DPCs की बात की है, ये सही बात है, प्रमोशन हुए ही नहीं, पिछले कई बरसों से रुका हुआ है ये सिलसिला। पहले हुए थे लेकिन उसके बाद 8-10 साल में नहीं हुए, लेकिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन गई है, क्योंकि ये जो आंगनवाड़ी बहनें काम करते हैं इसमें जब ये प्रमोट होती हैं ये सुपरवाइज़र बनती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कोटा में 50% है, प्रमोशन कोटा में 50% है। और मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जितना जल्दी हो सके DPC करके जिनका है मेरिट में आती हैं तो उनको आप कंसिडर कर लीजिए। जहाँ तक आपने कहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में है, सही बात है, बहुत सारे सेंटर्स कुछ बने हैं लेकिन अभी तक भी काफ़ी सेंटर्स जो हैं वो रेंटेड बिल्डिंग में है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बिल्डिंग जो है उसको गवर्नमेंट बनाए और उस लिहाज से बनाए ताकि वो वहाँ पे हर एक फैसिलिटी रख सके, क्योंकि प्राइवेट में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, नहीं मेंटेन कर पाते हैं, वो हम भी मानते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है, कहीं पे लैंड ना मिलने की वजह से नहीं कंस्ट्रक्ट हो पाती है, और लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंगें जो है सरकार बनाए और उनको अच्छे से अच्छे मेंटेन रख पाए ताकि वहाँ जो छोटे बच्चे आते हैं उनको सही ढंग से हर चीज़ वहाँ पे मिले और उनको किसी चीज़ की कमी ना रह सके वहाँ पे। जहाँ तक ऑनरेरियम का सवाल है, आपने कहा है कि मैंने कहा बढ़ाया, जो सही बात है वो तो सही है, उसको कोई नकार नहीं सकता। बढ़ा है 2008 में बढ़ा है,
वो तो सामने आपके पास डिटेल है, फिगर है। लेकिन मैं नहीं कहती हूँ कि वही काफ़ी है, हमने बढ़ा दिया तो बहुत कुछ किया। लेकिन मैं समझती हूँ जैसे आपने कहा, हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं उनसे बहुत काम लिया जाता है, इलेक्शंस में भी उनको लगाया जाता है, पल्स पोलियो ड्यूटी भी लगाया जाता है। हमारी कोशिश है, हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने तरफ से अगर वहाँ पे इसका हमें सपोर्ट करें और हमारा केस मजबूत बना दें और वहाँ से इसका फॉलो अप करें ताकि पैसा आ जाए। ये हम सबके लिए अच्छा है, हमारी बहनें जो है उनका ऑनरेरियम बढ़ जाए, हम सब यही चाहते हैं। शुक्रिया। कैसर साहब। सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो मनकोटिया साहब ने एक बात कही कि प्री नर्सरी जो है बच्चे हैं उनको भी अगर इसी में दाखिला दिया जाए। सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी रिसेंटली एक ऑर्डर जारी किया गया है लोकल लेवल पे कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो चल रहे थे बिल्डिंग्स में, चाहे रेंटेड है या जो भी है, उनको शिफ्ट किया जाए नज़दीकी स्कूलों में। मैं जानना चाहता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि ये सरकारी लेवल पर ये कोई डिसीजन है, कोई फैसला हुआ है या वहां लोकल लेवल पे, अगर लोकल लेवल पे इसको रोका जाए। ये जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि किसी जगह पे कोई ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमने एक मीटिंग की थी, हमने कहा था कि अगर कहीं पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि स्कूल और आंगनवाड़ी को क्लब करेंगे, क्योंकि स्कूल में भी आप मिड डे मील देते हैं, यहाँ पे आप न्यूट्रिशन अलग देते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाएगा, उसको फिर जो आगे ठीक रखना होगा वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कहीं पे ऑर्डर हुआ है, हमने कहा था अगर कहीं पे आपको एडिशनल अकोमोडेशन है, जैसे कुछ स्कूल्स इन बरसों में 2500 के करीब स्कूल्स को क्लब किया गया है, वो बिल्डिंगें अब खाली पड़ी हुई है। हमने कहा था अगर नज़दीक हो, अगर मेन रोड पे हो, अगर वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल हो, आप वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर को शिफ्ट कर सकते हैं, ना कि जहाँ ऑलरेडी स्कूल चल रहा है वहाँ नहीं। जो क्लब किए गए स्कूल्स हैं उनमें उनकी बिल्डिंग जो पड़ी हुई है, वहाँ पे अगर आपको लगता है वो हमारा जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रोग्राम ऑफिसर, CDPO है, पहले वहाँ जाके चेक करे कि हाँ ये ठीक है, छोटे बच्चे वहाँ पहुँच सकते हैं, उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा या नहीं रहेगा, तभी उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर सकती है। ये हमने हिदायत दी थी। श्यामलाल शर्मा जी। सर, AQ नंबर